इस बीच ये स्लोअर गेंद, और जिसकी हम बात कर रहे थे, इतने विकेट्स वो अपनी नहीं दे रहे होते गुलबदीन नेब को, एक और विकेट का पतन होता हुआ और कमिंस क्लीन बोल्ड हो गए। 111 पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने 8वां विकेट खो दिया है। Well, clean ball there, slower delivery. Gulbuddin Naib is celebrating in traditional style like a bodybuilder, flexing both his arms. And why not? You dismiss Pat Cummins, who was really rejoicing with a hat-trick when Afghanistan scored 148 for 6, bringing Afghanistan really putting on the screws here. 111 for 8. Gulbuddin picking up a wicket of his third delivery. We have Zampa now, who's come on to strike, and Ashton Agar, who came in for Mitchell Starc at the non-strikers end, batting on 1. और जो टीम के कोच हैं अफगानिस्तान के, जोनाथन ट्रॉट, वो अब थोड़े से जो उनकी चेहरे पे चिंता की लकीरें हम देख रहे थे वो थोड़ी गायब दिखाई दे रही हैं और काफी कुछ हरकत वो ड्रेसिंग रूम से करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। गुलबदीन नेब, जिनकी हम बात कर रहे थे, 4 विकेट अब तक इस मुकाबले में ले चुके हैं। 5वीं गेंद के साथ स्लोअर, और इस बार परखाव से एडम जाम्पा ने कलाइयों के सहारे मोड़ा, इससे पहले कि लॉन्ग ऑन की पोजीशन से गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन बनाने का मौका। गुलबदीन की बात करें, 4 ओवर 20 रन 4 विकेट, तो इन दोनों गेंदबाजों ने अपना अपना कोटा पूरा कर लिया है। और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो नवीनुल हक का 1 ओवर बचा है, फारूकी के 2 ओवर बचे हैं, तो शायद मुझे लगता है इन्हीं दोनों गेंदबाजों से ओवर कराएंगे। तो यहां पर तो मुझे लगता है फारूकी का ओवर अब बन रहा है अगर तेज गेंदबाज को ही रखते हैं। टेरेन ब्रेबो को हम देख पा रहे हैं स्टेडियम में, वहां पहुंच गए हैं। बॉलिंग कोच है अफगानिस्तान के। 18 गेंदों पे 36 रनों की जरूरत। नवीनुल हक को गेंद दी है, ये उनका आखिरी ओवर है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद, और पूरी तरह से चकमा खा गए वहां बल्लेबाज। तो बड़ा दिलचस्प है अर्जुन कि नवीनुल हक का ये आखिरी ओवर है और फारूकी के 2 ओवर बचे हैं, फिर भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन तो यही कहती है कि फारूकी को ओवर देना चाहिए था। Well, I'm sure Naveenul Haq, who has picked up 2 wickets already, but with the new ball, hopefully will pick up another wicket for Afghanistan with the old ball. 113 for 8 into the second delivery of the 18th over. The equation is 36 required from the remaining 17 deliveries. This time wide outside the off stump, and a wicket picked up by Naveenul Haq. Tremendous catch there by Naib at mid-off. Short mid-wicket, in fact. So the 9th wicket has fallen with a score 113 on the board. We're talking about what Naveenul Haq could bring to the match in his 3rd spell, and he picks up a wicket. His 3rd wicket, in fact, in this game. 2 with the new ball, and now in the 18th over as well, with Ashton Agar out for 2. So it's all down to the last batsman and Adam Zampa. Afghanistan would be creating quite a shock if they can pick up another wicket in this over, and it seems everyone is waiting for this match to finish with the way things are right now. They are putting the fit in the door. That's very interesting coming from a Hindi commentator. और जिस तरीके से वापसी की है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। आप हमारा कार्यक्रम जरूर सुनिएगा बीच में। फिलहाल 113 स्कोर है, 9 विकेट के नुकसान पे। हेजलवुड अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एडम जाम्पा नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर हैं, और जिस मैथमेटिकल इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, फारूकी को ओवर देना चाहिए था क्योंकि उनके 2 ओवर बचे थे। राशिद का दिमाग शायद हम लोगों से थोड़ा ऊपर चल रहा है, और जब सब कुछ आपके फेवर में हो रहा हो तो नवीन को उन्होंने गेंद थमाई और आउट ऑफ द ब्लू नवीन ने। That's what we call an expert commentator, right, Ankit? So it is Hazlewood on strike, the left-handed tail end batsman, and Naveenul Haq bowling a sharp delivery, playing it straight to the fielder at mid-off. A single picked up. 114 for 9. Just coming back to Naib, who's picked up 4 for 20, and a contender for the player of the match. I'm sure that will be discussed in the post-match program as well on Akashvani. His previous best was 3 for 28 versus Sri Lanka. So thank you Manoj Kumar for giving that stat as well. यहाँ से 34 रनों की जरूरत है, और काम इतना आसान है नहीं क्योंकि आपके पास सिर्फ 14 गेंदें बची हैं। अब अगर हर गेंद पे आप 3 रन बनाएंगे तब जाके आपके खाते में 42 रन आएंगे। तो
ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब 12-14 का हो चला है, तो इतना आसान अब होने वाला नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। विकेट उनके हाथ में है नहीं। राउंड द विकेट नवीन उल हक चले, ये गेंद और जोर से बल्ला चलाया, वहां स्टीयर करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। बैकफुट पे खेलने का प्रयास, हेजलवुड 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। 115 स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का 9 विकेट के नुकसान पे। नवीन उल हक की अब आखिरी गेंद आनी है। यह भी देखना होगा कि क्या यहां पे कोई स्लिप लेते हैं कप्तान, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा पोस्ट मैच कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा आकाशवाणी पे, और उसके बाद आज के ही दिन यूएसए और इंग्लैंड का मैच है, हमारे साथ जुड़ जाइएगा शाम 7:30 पे। नवीन उल हक चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ 115 ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट के नुकसान पे। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद और बल्ला चलाया, गेंद हवा में, क्या उसके नीचे फील्डर पहुंचेंगे? जी नहीं, 1 बाउंस गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन। 116 9 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर की समाप्ति के बाद 11 गेंदें बची हैं अर्जुन इस मुकाबले में, और ऐसा हुआ है 12 बार कि 10 गेंदों पे 50-50 रन बने हैं T20 में। ये आंकड़े हमें मनोज कुमार दे रहे हैं, हमारे स्टैटिस्टिशियन। बारबाडोस में मैच होगा आज यूएसए और इंग्लैंड का। इस बीच ये गेंद और उड़ाया है गेंद को हवा में, उसके पीछे फील्डर पहुंच रहे हैं। 1 बाउंस, कप्तान राशिद ने गेंद को फील्ड किया। थ्रो करेंगे इससे पहले 1 रन बनाने का मौका। 1-1 रन से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल 10 गेंदें बची हैं, 32 रन बनाने हैं। और जैसा मनोज कुमार बता रहे हैं 12 बार ऐसा हुआ है कि 10 गेंदों पे 50 या उससे ज्यादा रन बने हैं। Adam Zampa, who did very well as a leg spinner. Let's have a look at his figures. Adam Zampa, when he was responsible for Afghanistan scoring 148 for 6. Zampa 2 for 28, and this time playing it over the infield behind the wicket on the offside for a boundary. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, बीआईएस लाया गुणवत्ता का मौका। और इसलिए कहा जाता है अगर आप बल्ला चलाएं तो जोर से चलाइए, क्योंकि गेंद में अगर बल्ले का किनारा लिया तो कहीं थर्ड मैन से निकलेगी तो 4 के लिए जा सकती है। 121 ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट के नुकसान पे 28 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें बची हैं, 8 गेंदें बची हैं, 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये भारत पाकिस्तान का T20 मैच नहीं है, विराट कोहली नहीं है, उनके सामने हारिस राउफ नहीं है लगातार 2 छक्के लगा दे। ये स्लोअर गेंद, इस गेंद को पहले ऑन साइड में खेलना चाहते थे, किसी तरह से खेला जरूर वहां, और इससे पहले कि शॉर्ट मिड विकेट पे गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन बना लेंगे जाम्पा, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे पहुंचेंगे 7 की रन संख्या पे, जबकि 3 की रन संख्या पे वहां हेजलवुड अब स्ट्राइक लेंगे 122 9 विकेट के नुकसान पे। 7 गेंदें 27 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इसके बाद देखना होगा जो आखिरी ओवर है वो किसे देते हैं। कप्तान राशिद खान या तो नूर अहमद को दे सकते हैं, उनके अलावा उमर जाई हैं उनके पास एक ऑप्शन। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी आखिरी ओवर में। इस बीच ये गेंद और स्लोअर गेंद, इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है एश्टन एगर ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे क्या? जी नहीं, हेजलवुड ने मोड़ा था इस गेंद को और 2 रन पूरे कर लिए। और एडम जाम्पा के पास अब स्ट्राइक 124 स्कोर 9 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंदों पे 25 रनों की जरूरत। और अब देखना है कि आखिरी ओवर कौन करता है। 125 for 9. The equation is 24 required from the remaining 6 deliveries. और ये काम इतना आसान है नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां पर, तो अब पूरी उम्मीदें अफगानिस्तान के साथ। उमर जाई की पहली गेंद और उछाल कर खेल दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट की ओर, उसे इससे पहले कि फील्ड किया जाए। 2 रन बनाने का मौका, और इस 2 रन के साथ एडम जाम्पा अभी भी स्ट्राइक पे रहेंगे, और यही वो चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यही चाहती है। ब्रेबो वहां मैदान पर अपने खिलाड़ियों को कुछ समझा रहे हैं। 22 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत है। गुलबदीन पहुंचे हैं वहां पर उमर जाई से बातचीत करने। एक बात दिलचस्प रही कि पहले ओवर में नवी ने सिर्फ 1 रन दिया था, वार्नर को चलता किया था, उसके बावजूद उनको गेंद नहीं दी राशिद ने। उमर जाई के पास है गेंद, ये गेंद और इस बार बढ़िया कनेक्शन हुआ है, उसके नीचे फील्डर, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये आखिरी विकेट गंवा दिया और अफगानिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया है। 21 रनों से ये मैच अफगानिस्तान की टीम जीत गई है। 149 रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 148 बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां ऑल आउट हो गई, जबकि
एडम जंपा ने ये स्ट्रोक खेला था और लॉन्ग ऑन पे शानदार कैच मुकम्मल किया और सही निर्णय यहां कप्तान का कि स्पिनर के बजाय उमरजाई को गेंद दे और 21 रनों से अफगानिस्तान ने यह मैच जीत लिया. And it's time now for us to tune in to Player of the Match, the post-match program, to find out who is the man of the match in this game after Afghanistan's tremendous win by 21 runs against Australia in this Super 8